In India, small and marginal landowners face constant challenges due to their modest and fragmented land holdings. Further depletion of water resources and lack of climate-resilient techniques is endangering the farmer community because even a little change in weather can affect their crop yield considerably. हमारे यहाँ क्या है कि सर क्लाइमेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, जिसमें क्या है कि अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश होना और अनावृष्टि कभी मतलब कम होती थी और छिटपुट बारिश, तो उससे क्या है कि हमारे फसलों में क्या है कि काफ़ी नुकसान रहता था। मौसम का पता नहीं रहता था ना, तो बिना मौसम जाते थे तो नुकसान था, बीज का भी नुकसान था, अर्थ का भी नुकसान था। हमारे गांव के अंदर खेती बाड़ी करने के लिए पानी के उचित प्रबंधन नहीं थे, जिसके कारण हमें सिंचाई की बहुत अधिक समस्याएं आती थी। रबी की फसल के टाइम पे क्या होता था, फरवरी महीने में अचानक टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से ज़मीन की जो नमी है ना वो जल्दी सूख जाती थी और जैसे कि गेहूं है, गेहूं में मतलब वो दाने बराबर नहीं बन पाते थे, जितनी फसल निकलना चाहिए ना उतनी नहीं निकल पाती थी। जब बारिश से ही नष्ट हो जाएंगे तो हमारी स्थिति भी बहुत खराब हो जाती थी। इससे किसानों को और ग्रामीण जन समुदाय को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। फलस्वरूप जो किसानों की पैदावार है कृषि से वो कम होती जा रही है और उनकी आमदनी में भी इससे कमी होती जा रही है। To solve farmers' problems and to increase their adaptability towards climate risk, ITC under its Social Investment Initiative started the Climate Smart Village program in 2017. For the CSV project, ITC partnered with the expert agency CGIAR to construct a framework for enhancing farmers' capacity and to manage associated climatic challenges by empowering these communities. Within the CSV program, ITC conducted a cluster baseline survey to collect primary data on current and projected climate risk. ITC मिशन सुनहरा कल के माध्यम से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने ना यहाँ पे आके सर्वे किया कि भाई आपके कितने जानवर है, कितने बीघे में आप खेती करते हो और किस तरीके से खेती करते हो, तो हमने सारा उनको बताया। Historical data was also studied to check for patterns. Then, research was done by several stakeholders and a workshop was conducted by collaborating with them to understand technology prioritization and to develop a robust CSV toolkit specifically designed to mitigate climate risks and to build resilience within the village. क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के कार्यक्रम में आईटीसी एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, जो कि कोटा जिले के विभिन्न गांवों में कार्य कर रहा है। तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के बारे में हमारे किसान भाइयों को प्रेरित करना है। जो आईटीसी ने अपना मिशन सुनहरा कल है, इसके माध्यम से कुछ इस तरह की डिवाइसेस टूल्स विकसित किए गए हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। ITC facilitated farmers in CSV framework to work on 4 core components: knowledge empowerment for adoption of CSV toolkit, natural resource management for each household to have access to irrigation and ensure at least 2 crops in a year, livelihood diversification to make sure farmers also have alternative sources of income, institutional linkages for farmers' collective action like ABCs, PACs and FPO, with the aim of minimizing risk in bad years and maximizing yield and income in good years. Knowledge empowerment was done. Firstly, farmer field schools were set up to train farmers on climate techniques. सबसे पहले इसमें हम एक ग्रुप बनाते हैं, फार्मर्स होते हैं, जिसमें एक सुपर चैंपियन फार्मर्स होता है, बाकी चैंपियन फार्मर्स होते हैं। हमारी जो टूल किट्स होती है एफएफएस की ट्रेनिंग देते हैं। एफएफएस ट्रेनिंग में हम बीज उपचार से लेके बीज उपचार, मृदा परीक्षण, डेमोन्स्ट्रेशन करके सुपर चैंपियन किसान के यहाँ दिखाते हैं। The fields of the super champion farmers were used as demo farms where CSV farming techniques were demonstrated.
These on-ground demonstrations were vital in showcasing the efficacy of the adapted practices. आईटीसी के माध्यम से बताया भी गया है कि हमें कम समय में अच्छी फसलों का कैसे कैसे उत्पादन लेना है। इसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि हम जीरो टिलेज विधि से फसल उत्पादन कर सकते हैं। बीबीएफ पद्धति का भी हमें सोयाबीन की फसल में उपयोग बताया गया, गेहूं की फसल में बताया गया। बीबीएफ पद्धति के माध्यम से खेतों में वर्षा के सीजन में अतिरिक्त पानी जो होता है वो नाली के माध्यम से बाहर निकल जाता है, खेतों में नमी बनी रहती है। इससे हमें फसल क्या लंबे समय तक पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। Introducing farmers to these practices was essential in laying the foundation of the CSV framework. Additionally, village resource persons like Krishi Sakhis were introduced to engage with farmers for on-ground capacity building. महिलाओं को घर घर जाकर और इकट्ठी करके उनको बताते हैं कि भाई मॉड्यूल के बारे से और इसे पंपलेट के बारे में, कि उनको फोटो दिखवा करके भाई इस तरीके से खेती करने से हमें क्या लाभ मिल रहा है। हर महीने उनकी मीटिंग करवाना, नई नई तकनीक के बारे में सिखाना। आईटीसी के साथ में जुड़ने से किसानों को ये फ़ायदा हो रहा है कि जैसे जो समय समय पर किसानों को समय से जानकारी पहुंच जाती है तो किसान उसके अकॉर्डिंग अपना प्रबंधन कर लेता है। The next element in the CSV framework is natural resource management. It aims at strengthening the natural resources available in the village. This involves promoting water stewardship to ensure irrigation water access for all farmers. एनीकट निर्माण होने के बाद हमें सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो पाया। प्लस हमें फुहारा सिंचाई पद्धति के बारे में बताया गया, जिससे जमीन की ऊपरी परत गीली हो जाती है। इसके माध्यम से क्या है कि सिंचाई पे अतिरिक्त पानी वेस्टेज नहीं जाता है। फिर धीरे धीरे इन्होंने कहा भाई खाद बीज भी कम करो, तो हमने धीरे धीरे फिर जैविक खाद के अनुसार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना भी शुरू किया। तो उससे क्या है कि मेरे ज़मीन की जो है ना उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है सर। मुझे मतलब बाहर से कोई केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। Under natural resource management, farmers were also encouraged to grow at least 2 crops in a year. फसल विविधीकरण का मतलब है एक से अधिक फसल लगाना। तो जैसे मान लो अगर एक फसल खराब भी हो जाती है ना, तो उससे क्या है कि दूसरी फसल में उसका मेरा रिकवर हो जाता है। To reduce the farmers' risk from extreme events, livelihood diversification was endorsed, in which farmers were encouraged to have another source of income like orchard planting and cattle rearing. हमको उद्यानिकी विभाग के अनुसार 2 बीघा की संतरे की फसल, ये जो आपके सामने खड़ी है, ये लगाया गया। उसमें हमने ड्रिप लगाया, इससे कम पानी में भी उसको हमने हरा भरा करके बड़ा कर लिया। इससे हमें 2 लाख रुपए का मुनाफा मिला। खेती के अलावा अपने को आमदनी वो चीज़ें इन्होंने बताई, जैसे दूध उत्पादन करने के लिए गाय भैंसे पाली अपन ने, भेड़े वगैरह बकरियाँ भी, ये भी उससे फायदा हो रहा है, अपनी आमदनी भी बढ़ रही है सर। Within the livelihood diversification, not only several women-owned micro-enterprises were promoted for sustainable and effective livestock management, some local women were made Pashu Sakhis. आईटीसी कंपनी से ये दीदी आई थी, उन्होंने बताया कि पशु सखी की ये ट्रेनिंग हो रही है, उसमें आप काम करना चाहते हो क्या? मैंने कहा कि मैं भी करना चाहती हूँ, कि थोड़ा रोजगार मिल जाएगा। Trained as companions for animal care, these women play a vital role in offering guidance and assistance to farmers in caring for their livestock. पहले यहाँ कोई पशु सखी कोई न जी, तो बाहर सु खेतों सु कहीं से भी डॉक्टर बुलाकर उनको इलाज कराओ जा। और अभी के पशु तो बहुत अष्ट पुष्टि है और पहले के ज़्यादा मरते। Institutional linkages involve linking farmers to the best possible schemes. फसल बीमा करवाना, ये भी जानकारी दी, ताकि अगर मौसम खराब हो जाता है तो अगर फसल बीमा है तो उससे अच्छा लाभ मिल जाएगा। And they were also connected with farmers' institutions so that challenges related to seeds, production and distribution could be addressed.
Further, agri-business centers and custom hiring centers helped in adopting CSV farming techniques throughout the village. Farmers were informed about the ITC Mars app, giving them quick access to information on crops, weather and market conditions. सर ITC मार्स ऐप है ना, जो हमको पूरी जानकारी दे देता है, क्या भाव है क्या नहीं है, उस हिसाब से मिलता है। मौसम की जानकारी के बारे में भी इस ऐप से हमको भरोसा हो जाता है। भी आज बारिश आ रही है तो हम गेहूँ नहीं ओरेंगे, आज अगर बारिश नहीं होगी तो हम 2-4 दिन बाद में उसको गेहूँ को ओर देते हैं, उससे फ़ायदा हो जाता है। According to the ITC Adaptation Toolkit, a village achieves climate smart status when a majority of farmers exhibit competence in the following 6 aspects: water smart, nutrient smart, carbon smart, energy smart, knowledge smart, and weather smart. To assess the impact of the CSV framework, the Quadrant Toolkit is used for village movement. When CSV started in 2017, 39 villages were under the high resilient, high yield category. And after implementation of the CSV framework, ITC was able to move 20 additional villages to the high resilient, high yield category. In the fiscal year 2022-23, there was untimely rainfall in both the seasons during harvesting period. But farmers who adopted CSV practices incurred minimum loss and had more productivity than others. An average of 1 to 1.5 quintal per acre in soya bean and 2 to 2.5 quintal per acre in wheat. समुदाय स्तर पर जो किसान हैं उनमें एक तो जागरूकता बढ़ी है और उनकी सोच में भी परिवर्तन आया। इस जलवायु के अनुरूप खेती करने से अब मारताई कोई नुकसान न हो रही। ITC की बात से बनाए गए एनीकट के द्वारा हमारा वाटर रिचार्ज हो रहा है, इससे हमारे कुएं में इनमें जल बढ़ा है। इसी की वजह से क्या है कि हमें सिंचाई की दिक्कतें नहीं आ रही है। और जब ITC आए तो कम लागत में अधिक मुनाफा, कम पैसा में अधिक लाभ मिलो जो माई। मेरी सोयाबीन एवं गेहूँ की फसल पैदावार में 2-3 क्विंटल प्रति एकड़ की बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए मैं ITC सुनेरा कल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग समझने लग गए हैं कि नई तकनीक के उपयोग से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ताकि अच्छी अपना उत्पादन ले सकते हैं, अपनी आय ले करके आगे बढ़ने के पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। This initiative empowers farmers against the prevailing problem of climate change. And these villages have evolved into a beacon of hope for sustainable agriculture, securing livelihood for the farmers across India.